Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss one topic from virtue ethics part of the syllabus. So in ethics paper of UPSC, you have different branches of ethical reasoning, moral reasoning. The one branch is virtue ethics, another branch is consequentialist or teleological ethics, third is deontological ethics, and then John Locke's rights ethics. Now, in virtue ethics, there are different philosophers like Aristotle, Plato, Socrates, Epicurean, Stoic, Buddha, Mahavira. So, now I am going to discuss one concept of a philosophical thinker that is Socrates. So, in Socrates' ideas, there was one concept of dialectic methodology that I am going to discuss. So, in virtue ethics ideas given by Socrates, there is a concept called concept of dialectic methodology. So now what this concept of dialectic methodology is, that dialect means dialogue, okay, and Socrates was the philosopher who advocated, who said, okay, that philosophy's development, okay, जो philosophy का विकास होना चाहिए, जो विकसित होनी चाहिए, should not happen in a university where 4 or 5 philosophers are sitting together discussing about ethics or morality. Okay, philosophy should be developed, okay, in areas, or philosophy should be discussed with the people, and its development should happen through a dialogue, meaningful conversation with the common people. Philosophy should be able to solve day-to-day problems of people's life. If philosophy can't solve the day-to-day problem of people's lives, then philosophy as a subject has no use or will be useless. And that's why real realm of philosophical inquiry should be the life of a people. और इसलिए एक जंगल में बैठ के या कोई गुफा में बैठ के या यूनिवर्सिटी में 4-5 प्रोफेसर टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफी, डिस्कसिंग अबाउट फिलोसॉफी, सॉक्रेटिस सेड, उससे कोई फिलोसॉफी का डेवलपमेंट नहीं होगा. फिलोसॉफी ओनली कम्स थ्रू डायलेक्टिक मेथोडोलॉजी, डायलॉग एज अ वे ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. सो इसी कंसेप्ट को वी विल डिस्कस लिटिल बिट इन डिटेल. सो सॉक्रेटिक्स डायलेक्टिक मेथोडोलॉजी. नाउ सॉक्रेटिस का जो कहना था कि सॉक्रेटिस जो एक बात के लिए बहुत फेमस था, दैट ही यूज्ड टू कम टू द मार्केट, ही यूज्ड टू स्टैंड इन द मार्केट ऑन सम प्लेटफॉर्म, एंड पीपल यूज्ड टू गैदर एंड दे यूज्ड टू आस्क देम द क्वेश्चंस ऑफ डेली प्रॉब्लम्स, मोरल प्रॉब्लम्स दे फेस, इथिकल प्रॉब्लम दे फेस. और इवन कोई इंटेलेक्चुअल भी उससे मिलता था, दे यूज्ड टू क्वेश्चन, आर्ग्यू विथ ईच अदर. तो सॉक्रेटिस ने क्रॉस एग्जामिनेशन की एक मेथड भी इन्वेंट की थी, एंड थ्रू दिस क्रॉस एग्जामिनेशन एंड डिबेट्स एंड डायलॉग्स, okay, truth has to be discovered, truth has to be understood, and that's why dialogue is a very important, discussion and debate as a way to achieve philosophical knowledge is very important as per Socrates. So Socrates was the first philosopher to assert that human realm, that human life was the proper focus of philosophical inquiry. Okay, human realm, human life is the major aspect of philosophical inquiry. इथिक्स का पेपर का जो पर्पज है, इथिक्स सब्जेक्ट का जो पर्पज है, इज नॉट टू डिबेट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स. भगवान होता है, नहीं होता है, डू वी नीड गॉड फॉर मोरालिटी और नॉट, ओके, राइट्स क्या होते हैं, वर्च्यूज क्या होते हैं. इफ यू कांट टीच मोरालिटी टू द पीपल, इफ यू कांट टेल मोरालिटी टू द पीपल, एंड इफ यू कांट क्रिएट अ गुड सोसाइटी, इथिकल सोसाइटी, देन इथिक्स एज सच पेपर विल बी हैविंग नो यूज. And so most important purpose of ethics paper is that it should be able to create good society. It should be able to create virtuous society. And if you want to create good society, if we want to create virtuous society, then we need a dialogue as a way of philosophical inquiry. Okay. So how people should live their lives, and in communities, what kinds of actions were righteous, what makes good citizens. Okay. ये जो है was the major idea of the behind Socrates debates. So how people should live their lives in community, or in general how they should live their life, how they should behave in a community, how they should behave in their offices, or what kind of actions were right and wrong, what makes good citizen. ये जो questions है, that Socrates wanted to answer in ethics first. And so Socrates essentially invented new mode of investigation and believed that best way to find a philosophical knowledge, or one of the important components of being good, okay, a good ethical citizen, was to have meaningful conversation with the people. You need to have meaningful conversation with the people, dialogue with the people, or through these meaningful conversations only you can achieve knowledge of philosophy.
you can able to derive what is right and wrong understanding. You will be able to understand principles of morality, right principle of morality, and about ideas like justice, righteousness, virtue. तो जस्टिस क्या होता है, राइट और रॉन्ग क्या होता है, इथिकल अनइथिकल क्या होता है, जस्टिस क्या, वर्च्यूज क्या, विच वर्च्यूज आर गुड, विच वर्च्यूज आर बैड, विच वर्च्यूज हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन व्हाट अमाउंट. ये सारा नॉलेज जो है कैन ओनली कम टू यू ओके थ्रू डायलॉग एज अ वे ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, थ्रू मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस. आइसोलेशन में बैठ के कहीं पे अकेले बैठ के मेडिटेशन करके यू वोंट बी एबल टू एक्वायर द फिलोसॉफिकल नॉलेज. और इंडिया में भी यही आइडिया इनडायरेक्टली भगवद गीता इथिक्स में भी भगवान कृष्ण ने बताई थी अर्जुन को, कि अर्जुन का जो कहना था कि इतने सारे लोगों को मारने के बजाय अपने रिलेटिव्स, ब्रदर्स, कजिन्स, इन सबका मर्डर करने की जगह पे ओके आई विल प्रीफर ओके टू ड्रॉप माई वेपन, गो टू जंगल, डू सम तपश्चर्या एंड अचीव मोक्ष. पर जो भगवद गीता में कृष्णा ने बताया कि युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती. You can't achieve this moksha, liberation, okay, without doing your duties, karmas. तो यही युद्ध में रह के okay, एक क्षत्रिय के जो ड्यूटीज है that you need to perform, और वही क्षत्रिय धर्म की ड्यूटी करके on duty you need to fight for this, और ये करते करते मर भी गए okay, तो भी चलेगा, but you can't escape your duties. एंड जो सोसाइटी की ऑर्डर है, सृष्टि चक्र है okay, उसी में रह के सृष्टि चक्र को चलाना पड़ेगा और तुम्हारा जो योगदान है वो देना पड़ेगा. ओके, एंड बाय रनिंग सृष्टि चक्र ओके एंड बाय डूइंग योर ड्यूटीज यू विल बी डूइंग दैट इज अल्टीमेट इथिकल थिंग, और उसी से ही सिर्फ मोक्ष आएगा. नॉट इन आइसोलेशन और गिविंग अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिविंग अप योर ड्यूटीज. तो ये ड्यूटीज करते करते ही कैसे इथिकल रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टास्क. ओके, व्हाइल परफॉर्मिंग डे टू डे लाइफ, रूटीन लाइफ के जो स्ट्रगल्स है उनको फेस करते वक्त हाउ टू बी मोरल, तभी मोरलिटी समझ में आएगी. कहीं जंगल में बैठा है ओके तो उसको कोई मोरलिटी नहीं समझ में आएगी, बट डेली लाइफ में आप अपने बच्चों को संभाल रहे हो और अपने बच्चे अगर भूखे हैं तो एक बाप होने के नाते मैं कहीं से चोरी करके उसका पेट भरूं या ना भरूं, डे टू डे लाइफ में ही आपको जो मोरल डायलेमास आएंगे उनको सॉल्व करना, दैट इज द बेसिक. और इन ये समझाना कि ऐसे मोरल डायलेमा में क्या करें इज द पर्पज ऑफ इथिक्स सब्जेक्ट. एंड दिस नॉलेज कैन ओनली बी डेवलप थ्रू डायलॉग्स और डायलेक्टिक मेथोडोलॉजी. ओके, सो फिर ये जो डायलेक्टिक मेथोडोलॉजी है उसका जो कंसेप्ट था दैट फिलोसॉफिकल इंक्वायरी वाज परफॉर्म बाय कॉन्वर्सेशन रादर देन सॉलिटरी कंटेम्पलेशन. कॉन्वर्सेशन से फिलोसॉफी डेवलप करो, नॉट सॉलिटरी कंटेम्पलेशन कि 4-5 लोग यूनिवर्सिटी में बैठ के, 2-4 लोग यूनिवर्सिटी में बैठ के सिर्फ चर्चा कर रहे हैं फिलोसॉफी क्या होता है, इथिक्स क्या होता है, इथिक्स मोरालिटी में क्या डिफरेंस. ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट डिस्कस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके, डायलॉग से, कॉन्वर्सेशन से फिलोसॉफी के बारे में डिबेट करो, डिस्कशन करो. सो सोक्रेटिस बिलीव डीपली दैट पीपल शुड इंक्वायर एंड आस्क क्वेश्चंस इवन अबाउट और परहैप्स स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट एवरीवन टेक्स फॉर ग्रांटेड. तो फिर सोक्रेटिस ने क्या कहा कि ये जो डायलॉग आप करोगे तो ये डायलॉग कैसे करना है. तो इन दिस फिलोसॉफिकल डायलॉग आप किसी के साथ चर्चा कर रहे हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन उसके साथ चर्चा करते वक्त उन्हीं सवालों पे चर्चा करो, उसी चीजों पे सवाल उठाओ जो हर कोई टेकिंग फॉर ग्रांटेड. आपको कोई चीज बता रहा है ओके, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. हर चीज पे संदेह करो, डाउट करो, हैव ओपन माइंड, बी स्केप्टिकल. और ये स्केप्टिकल बन के ओपन माइंडेडनेस के साथ यू क्वेश्चन एवरीथिंग. हर चीज पे सवाल उठाओ, क्वेश्चन एवरीथिंग, हैव साइंटिफिक टेम्पर. हर चीज पे रैशनली रिफ्लेक्ट करो, एंड ये रैशनल रिफ्लेक्शन करके हर चीज पे सवाल कर करके ओके, एंड रादर उन चीजों पे ज्यादा सवाल करो जो एवरीवन टेक्स फॉर ग्रांटेड. और तभी जाके यू विल बी एबल टू रीच द अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसॉफी. So Socrates believed deeply that people should inquire and ask questions even about or perhaps especially about those things that everyone takes for granted. Okay, and Socrates was put on trial. So obviously वो सवाल पूछने की बात कर रहा था, लोगों को सवाल करने के लिए उकसा रहा था या सिखा रहा था इन अ गुड वे. और ऑटोमेटिकली फिर उसके जो स्टूडेंट्स थे, लोग जो थे ओके, दे स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस टू द एस्टैब्लिशमेंट, टू द अथॉरिटी. एथेंस का जो सिटी स्टेट था उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे सवाल उठने लगे. एंड उसी वजह से सोक्रेटिस वाज पुट ऑन ट्रायल, फाउंड गिल्टी ऑफ करप्टिंग द यूथ्स ऑफ एथेंस, और उसको फाइनली
उसकी ट्रायल हुई और उस ट्रायल में ऑब्वियसली ही वॉज पनिश्ड. सो सोक्रेटिस डिबेट्स फिलोसॉफी, क्वेश्चंस द गॉड, एथेंस पीपल वी डोंट डू दैट हियर. और फिर उसको जो फांसी की सजा नहीं लेकिन डेथ पेनल्टी दी. और डेथ पेनल्टी में भी उसको जो डेथ पेनल्टी दी गई थी सोक्रेटिस को, उसमें उसको जहर पी के मरने की पनिशमेंट दी थी. तो उसके जो स्टूडेंट्स थे प्लेटो, क्रीटो, सबने फिर ये प्लान किया कि हम एथेंस छोड़ के भाग जाएंगे दूसरे सिटी में, वहां पे अपने फिलोसॉफी एडवोकेट करेंगे एंड सोक्रेटिस की जान बच जाएगी. बट व्हेन फाइनली सोक्रेटिस की ट्रायल होने के बाद जब उसको ये सजा दी गई, सोक्रेटिस डिड नॉट रन अवे फ्रॉम एथेंस. ही स्टेड इन एथेंस एंड एक्सेप्टेड हिज पनिशमेंट. और उसने जहर पी के ही कमिटेड अ सुसाइड, और या डेथ पेनल्टी उसने फॉलो की. तो ये जो इमेज है सोक्रेटिस का, दैट इज ड्रिंकिंग पॉइजन. यहाँ पे प्लेटो बैठा है, ये क्रीटो उसको वो जहर का प्याला दे रहा है, पॉइजन दे रहा है, एंड सोक्रेटिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उसकी चेस्ट बाहर आ चुकी है. ही इज टेलिंग पीपल दैट व्हाई ही इज कमिटिंग सुसाइड, व्हाई इज ओबेइंग एथेंस सिटी स्टेट. और ये जो उसकी जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, इन अ वे ये दुनिया में पहली बार कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात कर रहा था. तो ये रेनेसांस में बनी पेंटिंग है. लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट सोक्रेटिस कर रहा था, व्हाई ही एक्सेप्टेड पॉइजन एंड कमिटेड सुसाइड, क्योंकि सोक्रेटिस का ये कहना था कि मेरे देश में, इस एथेंस सिटी स्टेट में, मेरे माँ बाप पैदा हो गए, वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, मैं बच्चा पैदा हुआ, मैं बड़ा हो गया, मुझे एजुकेशन मिला, यूनिवर्सिटी में जाके मैं प्रोफेसर बना, और किसी ने मुझे स्लेव नहीं किया. एथेंस सिटी स्टेट ने मुझे प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन दिया, खाना दिया, ये यूनिवर्सिटीज रन कराया एथेंस सिटी स्टेट, जहां से मुझे नॉलेज आया. और उसी नॉलेज को यूज करके आई एम क्वेश्चनिंग द एस्टैब्लिशमेंट, आई एम क्वेश्चनिंग द एथेंस सिटी स्टेट. तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एथेंस सिटी स्टेट में तो अपना सारा काम किया, मुझे प्रोटेक्ट करने का, मेरे सिक्योरिटी का, मेरे ग्रोथ, नॉलेज देने का. अब नाउ इट्स माई ऑल्सो ड्यूटी एज अ सिटीजन टू ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट. स्टेट हैज डन इट्स पार्ट, सो आई शुड डू माई पार्ट. तो भले ये लॉ मुझे गलत भी लगे, बट एज अ सिटीजन आई हैव अ मोरल ऑब्लिगेशन, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू फॉलो, दैट आई शुड ओबे द लॉज ऑफ द सिटी स्टेट. और मरते वक्त भी उसने जहर पी के कमिटेड सुसाइड एंड ओबेड द लॉज ऑफ द सिटी स्टेट. एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जेनेसिस भी इसी आर्ग्यूमेंट में आता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायलॉग एज अ वे ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. बहुत सारे इथिक्स के क्वेश्चन के आंसर में, केस स्टडी में भी ये आइडिया आप यूज कर सकते हो. वो कैसे यूज करना है, ये आइडियाज को कैसे केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने, इथिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑन माई दार्शनिक IAS ऐप आई विल बी लॉन्चिंग माई कोर्स. वहां पे आई विल टीच यू इन डिटेल 120 आवर्स का जो कोर्स होगा, आई विल डिस्कस इन डिटेल. सो डाउनलोड माई ऐप and stay tuned. Soon in January month around, I will be launching full courses there. And also stay connected with me on Darshanik IAS channel, YouTube channel. Like and subscribe this channel. And to download these notes, you can connect me on UPSC Ethics 4 Telegram channel, where you can download these notes and stay connected. So thanks for listening, guys.